लेफ्ट, फिल्म रिव्यू भी नहीं हुआ है हमारा, फिल्म रिव्यू लेंगे हम फर्स्ट। विल आई टीच यू ब्लॉग राइटिंग, ओके। और कौन कौन है? नियंता एंड, हाँ, टू टू आर देयर, है ना? अच्छा, यू अच्छा, शुड वी स्टार्ट नियंता? चलो मैं इसके लिए तो चालू कर देती हूँ सर, है ना? जो बीच में आएंगे वापस समझा दूंगी उनको, है ना? करवा दीजिए, चलो। अच्छा, अच्छा नियंता, सी, डिड यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय दिस ब्लॉग राइटिंग? Blog is nothing but an article. Okay, blog is nothing but an article. And पुराने जमाने में article was written in like in the newspaper, but now it is written in the on the social media. You have to go to www.blog.com, and there you have to write the article. Okay. Yeah. Any question, Niyanta? You have any question? No, ma'am. No, na? Chalo, have you, so we go to www, so the blogger will register on www.com, www.blog.com, and this page will be given to him to write his article. See this page. So here is the title, and then here is a plus sign. मतलब if he wants to, and बड़ा करना है screen, तो this is a screen का format. But you have, ऐसे ही format में आपको लिखना है, ठीक है? ऐसा बोर्ड एग्जाम में यही फॉर्मेट में आपको बनाना है और लिखना है। थैंक यू सर, यही फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है? नाउ नाउ हियर इन द टाइटल वी वर ऑन इंडियन दिवाली स्वीट्स, राइट? टाइटल में ये आएगा और यहाँ पे आएगा www.blog.com/title, दैट इज इंडियन दिवाली स्वीट्स, ये कॉलम में। ओके, टाइटल विल बी योर एंड टाइटल विल बी योर ऑल्सो। गॉट इट? नाउ we started with the origin, why Diwali is celebrated and why uh, Indians make sweets. Okay, Indian women or Indians make sweets. Now, second, that is our opening line or opening paragraph. Now, main content will be, what are we writing on? What is the topic? Let us be focus on the topic. This Indian Diwali sweet, right? So, what will be the main content? Main content will be, what are the different types of Diwali sweets made by different communities in India? India is a diverse nation, so there are different communities like Hindus, Maharashtrian Brahmins, we have Gujaratis, we have Sikhs, we have South Indian people living here. So people who are living at the coastal line, they make sweets out of jaggery and rice, okay, and coconut. So you have to mention all these points in this information in a point form, okay, or in a paragraph form. This is a different types of Indian Diwali sweet. You can say that Maharashtrian Brahmins make besan laddu and rava laddu, whereas Marathas make what? They make puran pori, they make anarse, they make bundi laddu, while Gujaratis make mohanthal and jalebi. Punjabis are making what? Different types of mithai, like kaju katli, and a lot of different types of mithais Punjabis make. Okay, gulab jamun. So you have to mention different types of Indian sweets, who is making what, because the topic is such. Then you have to add a picture in your, you have to insert a picture in your blog, because this blog or an article should be very attractive. The title should be very catchy, and you have to write a picture. You have to insert a picture. What are the different types of Diwali sweets? Because if a Russian lady or a Chinese lady is watching your blog, the Chinese lady will come to know which type of, how does each Diwali sweet look like, right? She should be able to identify what is gulab jamun. She should be able to identify what is kaju katli, or what is besan laddu, or bundi laddu, or anase, or shankarpali, or whatever. So for that, you need to insert a picture. How are you going to insert a picture? So are you going to draw it? No, here you can draw it, but there's no need here. But when you want to really make a blog, you can just go to stocks, iStock करके है.
on the net. There you get free images. You can download the free images. You can cut, copy, paste the free images from there to here. You can insert it here. Okay. Here somewhere you can insert the pictures of different Diwali sweets. That's how your article will be more attractive. Okay. And you can label them. मतलब ये जैसे ये ऐसे मतलब जिलेबी है, राइट? ये ऐसे लड्डू है, ये ऐसे लड्डू है. Am I okay? This is what Kaju Katli. So you can draw, you can label them, okay? Like this is gulab, whatever, like Shankar Pali, right? So you can write, you can label them, okay? So that the Russian lady or a Chinese lady who's watching from Russia or China, she will know how the Indian Diwali sweet look like and what they are all called, right? So they get a proper, your community people. What do you mean by community people? The followers or the people who are viewing your blog should be able to know what you're writing on. You were writing on Indian Diwali sweets, and she should be able to identify which types of Indian Diwali sweets are these. And your article will become more attractive. So it will get optimized or promoted on the, what do you mean by optimize? Optimize मतलब यूट्यूब वाले आपका ज्यादा प्रमोट करेंगे क्योंकि आपका ब्लॉग ज्यादा अट्रैक्टिव है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है. तो क्या होगा, ऐसे टाइप का जो ब्लॉग है वो रीडर्स को पढ़ने के लिए बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, राइट? सो they will, because all the information is there is some extra information that is you have also put the picture. तो ये ज्यादा अच्छा ब्लॉग है. तो यूट्यूब, ये कंटेंट बहुत अच्छा है, तो यूट्यूब गाइज विल गिव यू अ प्राइज ऑल्सो फॉर कंटेंट राइटिंग. They give you the golden button and the silver button, right? For good content writing, they give you all that. Okay. So you understanding what is the whole idea behind writing a blog. Then comes the third, comes the closing line or para. You can write conclusion here, but here I'm not able to conclude anything. So what I'm going to write, I'm going to write recipes of 2 Indian Diwali sweets. This is going to be the closing line or conclusion. Okay. You can write like this: origin, main content, or different types of conclusion में आप लिख सकते हो different recipes of 2 Indian Diwali sweets. That is, you can write one of the recipes of Puran Podi, or you can write one of the recipes of jalebi or whatever, or besan laddu. So that, जो भी आपका blog पढ़ रहा है, they will be able to make those Diwali sweets also. So the Russian lady who's sitting in Russia, she'll be able to make at least 1 or 2 Diwali sweets she'll be able to make by following your recipes. तो ब्लॉग क्यों लिखा जाता है? ताकि आपके व्यूअर्स को, आपके रीडर्स को वो इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा हो. ओके, दे आर एबल टू यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई इट इन देयर डे टू डे लिविंग. तो हम जैसे टाइप करते हैं ना, जैसे लाइक वी टाइप लाइक दिस, what we type, like we type how to make pizza bread at home. Okay. या किसी ने टाइप किया how to make बेसन लड्डू at home और इंडियन दिवाली स्वीट्स. तो आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है, आपका ब्लॉग पहले आ जाएगा हाउ टू मेक इंडियन दिवाली स्वीट्स. इसमें उसको सीखने को भी मिलेगा, उसमें उसको पता भी चलेगा क्यों बनाते हैं, उसको ये भी पता चलेगा कितने टाइप ऑफ दिवाली स्वीट है, जिसको नहीं पता होगा उसको वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट अ ब्लॉग. एम आई क्लियर? लास्ट क्या होता है, अभी जैसे आप टाइप करते हो गूगल पे, आई वांट टू मेक अ पिज्जा ब्रेड एट होम और चीज एट होम, तो ये आपका ब्लॉग आ गया, राइट? कंटेंट आ गया. फिर आप पढ़ने के बाद क्या होता है, ये सब पढ़ने के बाद क्या बोलता है वो यूट्यूबर आपको या ब्लॉगर, क्या बोलता है वो आपको? कॉल फॉर एक्शन. क्या बोलता है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर. दैट इज कॉल्ड कॉल फॉर एक्शन. ये कोई भी फॉर्मेट में दिया नहीं गया है कॉल फॉर एक्शन, बट इसको आधा मार्क्स है. ये कोई भी फॉर्मेट में कोई भी यूट्यूबर ने ये दिया नहीं है कॉल फॉर एक्शन, बट इसको आधा मार्क्स है.
आप लिखिए कॉल फॉर एक्शन और ये लिखिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ओके, और कमेंट। कमेंट का भी सेक्शन इधर रखिए, ओके, कमेंट। तो ये दिस इज व्हाट कॉल फॉर एक्शन, दिस इज द फोर्थ पॉइंट इन राइटिंग अ ब्लॉग। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये हमने फाइंड आउट किया है, हाउ टू ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स पढ़ के जाके पूरा रिसर्च करके ये हमने ये फॉर्मेट फाइंड आउट किया है। तो दिस इज द वे, ये एक्चुअल वे टू राइट अ ब्लॉग, ओके। am I clear? Yeah. Now see, ये पूरा ब्लॉग होने के बाद आप नीचे सी निकालो, सी का और इसको सर्कल में डाल दो, मतलब उसका मतलब क्या है, और लिखो ऑल राइट्स रिजर्व विद द ब्लॉगर। मतलब ये जो कंटेंट है ये आपके दिमाग से आई हुई है, राइट? ये आपने ये कंटेंट लिखा है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ये कंटेंट के जो लीगल राइट्स हैं ये आपके पास है। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि हमारे दिमाग से, ये हमारे इंटेलेक्ट से आई है। सो दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लॉगर हु हैज रिटन द कंटेंट। तो ये इसके कॉपीराइट्स उसके पास है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे लिखा तो कोई कॉपी नहीं करेगा, ओके? या कोई कॉपी करके अपना दूसरा यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकता, ये दूसरा ब्लॉग नहीं बना सकता। यू कैन स्यू, अगर बनाया तो यू कैन स्यू हिम इन द कोर्ट्स। तो ये नीचे एक लिखना, यहाँ पर लिखना अबाउट द ब्लॉगर एंड द ब्लॉगर्स नेम। ब्लॉगर्स नेम क्या है लिख देना, एंड अबाउट द ब्लॉगर लिख सकते हो कि ही वाज अ शेफ एट ताज और व्हाटएवर, लाइक यू नो व्हाट इज द ब्लॉगर्स नेम, यू कैन राइट व्हाटएवर द ब्लॉगर उसने लिखा है। अच्छा, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ आर्टिकल एंड द ब्लॉग। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल एंड अ ब्लॉग? आई जस्ट कम हियर to you so that you know I can hear you. Yes, Niyanta, can you tell me the difference between article or a blog? Ankur, who's Ankur Khandale? Niyanta, can you tell me the difference between an article and a blog? Yes. See, the difference between the article and a blog is, Niyanta, are you there? How is a blog writing? Simple. खत्म हो गया हमारा blog writing. मुझे बताओ, what is the difference between an article and a blog? Anyone? Anyone? Let me read the questions. आएगा अभी ब्लॉग लिखने तुम सबको, ठीक है? I don't think so they would join. I really don't know. One more person has joined. I don't know because you know they've just come. आप लोग एग्जाम दे के आए हो ना, आपका प्रैक्टिकल? हमारा राइटिंग स्किल्स रह गया था भाई, कुछ कुछ टॉपिक्स। अभी वर्चुअल मैसेज रह गया। वर्चुअल मैसेज लोग किस में लिख रहे हैं? सब डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, बट वर्चुअल मैसेज has to be written in the Excuse me, indirect ma'am. speech, right? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, article is a formal way to write, and blog is little bit informal. हाँ, tell me. Article is Article is in a formal way that we write, okay. and blog is informal. The Yeah, main one difference. more. Yeah, but you know, I will give you a clue. You are right, but one more clue I will give you. Uh, कॉल फॉर एक्शन पे जाओ, कमेंट सेक्शन पे, वहां से क्लू ले लो। क्या आर्टिकल लिखते वक्त आप कमेंट कर सकते हैं क्या आपके व्यूअर्स? डू यू नो No, हु that's आर what योर I'm trying to. व्यूअर्स? नो, when you're writing an article, you don't know the other person is writing an article for you, or maybe you have written, you've given to the newspaper guys to print it. Can you know who is viewing your article? You don't know. But in a blog, you can know who is viewing your article, who are your followers, and if they want to comment something, they can comment, they can interact with you. But in article, is this interaction is possible? No. So there's a difference between article and a blog. Interaction is not possible. Okay. अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी ब्लॉग में जो आपके व्यूअर्स और फॉलोअर्स है वो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आपकी कम्युनिटी के लोग, मतलब उनको इंटरेस्ट है ये कुकिंग में, और वो आपका ब्लॉग देख रहे हैं, दैट इज इंडियन दिवाली स्वीट्स, तो दे आर योर कम्युनिटी पीपल, राइट? अभी कोई फुटबॉलर होगा, वो लिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उनके कम्युनिटी के लोग जिसको इंटरेस्ट है फुटबॉल में, राइट?
तो व्यूअर्स या फॉलोअर्स को क्या बोलेंगे? योर कम्युनिटी पीपल। तो अक्सर आपने अगर यूट्यूबर्स का अगर देखा होगा, क्या बोलते हैं इंटरव्यू, तो वो क्या बोलते हैं? माई कम्युनिटी पीपल। आई हैव अ बिग कम्युनिटी, मतलब इतने लोग देखते हैं, इतने लोग फॉलो करते हैं, दैट इज कम्युनिटी। जो जिसको इंटरेस्ट है, वो जो देखता है, जो व्यूअर है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया सब? शुड वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक, फिल्म रिव्यू? वर्चुअल मैसेज में मेरे को बताना था, वर्चुअल मैसेज इन डायरेक्ट स्पीच में आएगा। डोंट राइट वर्चुअल मैसेज इन डायरेक्ट स्पीच। एम आई क्लियर? व्हाई? आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. We will go to virtual message, then we'll go to film review. Okay? We'll complete 3 topics today, 3 or 4 topics today. Okay? Should you want to remove a photograph of this? Do you want to remove a photograph? Please remove a photograph of this. So that, I'll just move aside. You just remove a photograph. Okay? Please remove a photograph of this, the format of the blog writing. और मैंने पीडीएफ में सारा कुछ भेज दिया है। ब्लॉग किस पे आ सकता है, राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स क्या है, जो ईमेल है और जो फॉर्मल लेटर है वो आपको इस पे आ सकता है। ईमेल जॉब एप्लीकेशन पे आ सकता है, या मीटिंग अरेंज करना है उस पे आ सकता है, या कोई दे हैव टू लाइक देयर इज अ सेल्स मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो उस पे आ सकता है। ठीक है, ऐसे सब मैंने टॉपिक्स आपको पीडीएफ भिजवा दिया है मैंने, आपके स्टूडेंट्स ग्रुप पे आपको मिलता ही होगा। और जो भी क्वेश्चंस है हमारे, जो पेपर में रिपीट हुए हैं 4 बार 8 बार, उसको मैंने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है, विद आंसर्स पीडीएफ बना के दे दिया है। नॉवेल्स पे दिया है, पोएम्स पे दिया है, राइटिंग स्किल्स पे दिया है, प्रोज पे दिया है, सब पे दे दिया है, सारे सेक्शंस पे दे दिया। तो उतना भी आप कर लो, रिवाइज कर लो। मैच द फॉलोइंग है नॉवेल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स है, अरेंज इन सीक्वेंस है, वन ग्रामर में वन ग्रामर का भी दे दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएगा, सब बता दिया है मैंने, पीडीएफ भेजा है विद आंसर, उतना पढ़ लो। ठीक है, ये हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, तो मैंने विद आंसर्स भिजवा दिया, बिकॉज यू हैव योर प्रैक्टिकल्स राइट, सो आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद एन ऑनलाइन लेक्चर नाउ अगेन। आई सेंट यू एवरीथिंग, यू जस्ट गो यू सॉल्व दैट पेपर, आई हैव गिवन यू आंसर्स आल्सो, देख लो एक बार उसको। ठीक है, हो गया सारे लोगों का पिक्चर निकाल के? should we start next topic? या वर्चुअल मैसेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो 5-6 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका वर्चुअल मैसेज। वर्चुअल मैसेज बड़ा नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, पास्ट टेंस में आता है। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज वर्चुअल मैसेज। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मैसेज? यस, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मैसेज? अभी कैसा है कि you seen virtual message is nothing but somebody is, suppose your mom, she's working with Infosys, she's working, और वो सुबह सुबह सब्जियां लेने गई हैं मार्केट, उनको बहुत टाइम लगने वाला है, और उनको बाद में 11:30 बजे जाना है, सॉरी 10 बजे जाना है ऑफिस, और उससे पहले वो 7-7:30 बजे निकल चुकी हैं, या 8 बजे सब्जी लेने निकल चुकी है बाहर, और उनके बॉस का फोन आता है। तो उनके बॉस क्या बोलेंगे आपको? हेलो नियंता, वेयर इज योर, कैन आई टॉक टू मिसेस सक्सेना? So you will say, no, sir, she's out. She's not in. Who's this? And do you have any message? So what will the boss say? Yes, who's this speaking? You can say, I'm her daughter. Then, sir, क्या उनके boss क्या बोलेंगे? अच्छा, listen, Niyanta, please give a message to your mom that today's meeting is being postponed for tomorrow at 11:30. Please pass on my message. It is very urgent. So you will say, yes, sir, I will definitely pass. Thank you, sir. Good day, sir. फोन रख दो। ठीक है, तो इसे डायलॉग फॉर्म में ऐसा एक पैसेज आएगा, या आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में भी
पूछा जा सकता है, राइट अ वर्चुअल मैसेज ऑन दिस टॉपिक। सो अभी आप क्या करोगे, आपकी मम्मी आ जाएंगी घर मार्केट से, आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू रिपोर्ट टू योर मॉम कि आप, तुम्हारे बॉस का फोन आया था और आपके बॉस ने बोला कि आज की मीटिंग कल होने वाली है। तो मम्मी पूछेगी कभी, तो बोलेगे 11:30। तो ये जो आपकी बॉस की जो या स्पीकर की जो बातें हैं वो आप बताओगे, यू आर गोइंग टू रिपोर्ट इट टू योर मॉम, एंड दैट्स द रीजन ये इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड फॉर्म में वर्चुअल मैसेज लिखा जाता है। एम आई क्लियर? व्हेन आई वाज चेकिंग प्रीलिम्स पेपर I of different academies, I found that children are writing in direct speech, which is totally incorrect. But still, I've given them marks, but I've mentioned a big question mark and an arrow and written, please write the virtual message in an indirect speech. Am I clear? Please don't do this mistake. You won't get any marks for the virtual message. And virtual message is the easiest way you can write. It is less time consuming. वो वाला टॉपिक उठाओ राइटिंग स्किल का जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। मगर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस आप उठा सकते हो, क्योंकि बोर्ड वालों ने बोला है कि इनको अच्छे से मार्क्स दे दो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए और ग्रुप डिस्कशन। मगर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते समय आपको वेलकम करना है वो इंसान को। जो लोग नहीं कर रहे हैं वेलकम, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डू यू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ, अगर कोई आ जाते हैं सब, उस अक्षय खन्ना आते हैं, उन्होंने अभी धुरंधर मूवी में काम किया है, तो उसका जरूर आएगा, आपको फिल्म रिव्यू भी आएगा और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आएगा कि यू आर इनवाइटिंग अक्षय खन्ना on the show, on your show, and you are interviewing him as to his role or his performance in movie Dhurandhar. So interview him. तो आप पहले वेलकम करोगे ना अक्षय खन्ना को, कि डायरेक्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछने लगोगे? तो आप प्लीज वेलकम कीजिए और फिर क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चंस जितने पूछने पूछिए, यस नो क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया, राइट? क्वेश्चंस पूछिए, देन एंडिंग भी तो कीजिए, उसको क्लोज भी तो कीजिए कन्वर्सेशन को। कैसे उठ के चले जाएगा अक्षय खन्ना और आप उठ के चले जाओगे इधर? नहीं ना, यू हैव टू एंड द योर कन्वर्सेशन, राइट, रिस्पेक्टफुली, सो दैट ही कम्स नेक्स्ट टाइम टू योर शो, राइट? तो कैसे एंड करोगे? थैंक यू सो मच सर फॉर योर precious time that you've given, our precious time and your expert advice about the your expert advice about acting. So for this will be useful to today's youth who wants to take up acting as their career. So that likewise you can end the interview questions. ठीक है? तो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने पहले लिया था, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे, जो मैंने फिर से मैं रिपीट करके डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वापस प्रीलिम्स के पेपर में देखा है था कि ये बच्चों ने पॉइंट लिखा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए आपको आधे आधे 1 मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स ओपनिंग को और आधा मार्क्स क्लोजिंग। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने भेज दिया है पीडीएफ, किसको कितना मार्क्स किस हिसाब से मिलने वाला है। मेन कंटेंट ही नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, फॉर्मेट के लिए ओनली 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, चलो लेट अस सी वर्चुअल मैसेज। अभी मिस्टर जेम्स का, मिस्टर जेम्स had called you up and he told you that today's meeting is being postponed for tomorrow. Instead of 10:30, it is at 11:30. So what, how you will pass on a Excuse message me, to ma'am. your, or you say, mom, Excuse me, please ma'am. pass a message to your mom or please inform your mom. इस पे एक आ Excuse सकता me, है। ma'am. सेकेंड आएगा कि आई हैव गिवन यू द टॉपिक्स, लेट अस सी, लेट अस ड्राफ्ट दिस वर्चुअल मैसेज। तो यहाँ पे लिखना है टाइम, डेट, या डेट और टाइम Hello, ma'am. कैसे भी हो सकता है। देन यू हैव टू मेंशन to whom are you writing? You're writing to your mom, so you can put dear mom. You don't have to write a story. मैंने प्रोजेक्ट, इंग्लिश प्रोजेक्ट चेक करते समय देखा, लड़कियों ने एक वर्चुअल इमेज क्रिएट किया है जेम्स का, बॉस का, और 2-2 पेजेस भर के Excuse me, वर्चुअल ma'am. मैसेज लिखे। और ये वर्चुअल मैसेज सिर्फ 5 लाइनों में खत्म हो जाना चाहिए। You are reporting the exact words of the speaker in the indirect form. That's it. You are not going to add any masalas to it.
If you add in, you're not going to get any marks. Am I Hello, clear? ma'am. Yeah. So let us see how we can Hello, ma'am. convert this. Okay, dear mom, your boss, Mr. James, had called up today. When did he call up? Today. What time? At. आपने time लिखा है यहाँ पे, right? Still you will put up time. Time at 8:30 when you were or you had gone out to buy some vegetables, some veggies for home. Mr. James, your boss, informed you that today's meeting, which is been rescheduled for tomorrow or tomorrow. That today's meeting has been rescheduled for tomorrow at time भी बताया था ना उसने at 11:30 p.m. He has asked you to be there tomorrow for the meeting. इतना लिखा तो भी चलेगा, ज्यादा मसाला ऐड करने का जरूरत नहीं. जो उसका शब्द था उसको एग्जैक्ट शब्द को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कर दिया है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने सिखाया था, ट्रिक्स सिखाए थे कैसे करना है, क्या करना है. सेट टू मी का क्या हो जाता है, सेट टू मॉम का क्या हो जाता है, टोल्ड मॉम दैट, टोल्ड मॉम दैट या इन्फॉर्म्ड मॉम दैट. क्वेश्चन पूछा तो आस्क्ड होगा. ये हो गया, मैसेज इज डन, राइट. दैट्स ऑल. उसने ये भी बोला था ना कि मम्मी को बोलो आने के लिए, तो आप ये भी लिख सकते हो जो मम्मी को बोला आने के लिए. सो ही हैज टोल्ड यू और he has instructed you to be there, to be there for to be there tomorrow for the said meeting. ओके, खत्म हमारा. वी आर डन विथ इट. फ्रॉम क्या आएगा, फ्रॉम योर नेम. आपका नाम क्या है, नियंता. नियंता. ओके, so we are done with our virtual message. It's in indirect speech. Time, date, subject नहीं आएगा क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है. इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है. ठीक है, आप डायरेक्ट सब्जेक्ट आप ओपनिंग लाइन या मेन कंटेंट में आप बता सकते हो. ठीक है, am I clear everyone? Will you be able to write virtual message? Give me thumbs up if you can. You want to copy it down, you can copy it down, but ये टॉपिक पे नहीं आने वाला है. आपको ये टॉपिक पे आ सकता है कि एक लड़की जा रही है, सुनीता इज गेटिंग लेट टू रीच हर एग्जामिनेशन हॉल एंड her dad has gone for a morning walk. So she is waiting for her dad to come and leave her on the bike. So what she does, she calls up her dad and tells him to come early with the bike because she is getting tensed up on reaching the examination hall or center
अर्ली, मतलब शी वॉन्ट्स टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल और द सेंटर अर्ली। ये टॉपिक पे आएगा, आपको आ सकता है। या ये भी टॉपिक पे आएगा कि सचिन हैज फुटबॉल टूर्नामेंट इन नासिक टुडे or at Balewadi Stadium today. So he won't be able to attend today's class. So Sachin wants to inform his friend that please inform our class teacher that he will not be present for today's class. ये टॉपिक पे भी आ सकता है। और एक टॉपिक पे आ सकता है आपको वर्चुअल मैसेज। जो भी टॉपिक पे आए, आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट द वर्चुअल मैसेज। इट इज वेरी सिंपल। कन्वर्ट इट इनटू indirect speech, make it very short. No need of adding masalas, as I said. फॉर्मेट ध्यान में रखो। फॉर्मेट के लिए 1.5 या 1 मार्क्स रहता है, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स रहता है, और पूरा प्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से लिखा तो 1 मार्क्स रहता है। तो 1 and 2 is 3, 4.5, एक्चुअली 4 मार्क्स रहता है। फॉर्मेट के लिए 1 मार्क रहता है, 1 मार्क प्रेजेंटेशन के लिए, तो 2 मार्क्स पूरे कंटेंट के लिए रहता है। ओके, सो दैट्स हाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4, A, B, C, D सारे राइटिंग स्किल्स पे आने वाले हैं, राइट। आपको 4 राइटिंग स्किल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4A में यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ईमेल राइटिंग, स्पीच राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। यू टू सिलेक्ट ओनली वन। जो भी इजी है, जो भी फॉर्मेट की तरह जैसे आता है आपको लिख लो, जिसमें कम टाइम लगता है। ये वर्चुअल मैसेज में सबसे कम टाइम लगता है, तो यू सिलेक्ट दिस। ओके, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में कम टाइम लगता है, या ब्लॉग राइटिंग में कम टाइम लगता है, तो यू कैन सिलेक्ट दैट। ईमेल में भी कम टाइम लगता है, तो यू कैन सिलेक्ट दैट। रिपोर्ट राइटिंग हमारा हो गया था कल। इंटरव्यू क्वेश्चंस आई विल टेक। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ग्रुप डिस्कशन भी मैंने बता दिया था। वी आर डन विद ग्रुप डिस्कशन। इट शुड बी इन द डायलॉग फॉर्म, राइट। इट शुड स्टार्ट the whole conversation. A group discussion is nothing but a चर्चा, okay, on a specific topic. तो आप चाय के टपरी पे जाते हो और वहां आपको सब लोग चर्चा करते रहते हैं, अरे एआई। अभी तो लेटेस्ट चर्चा क्या है कि हमारे जो मिनिस्टर थे अजीत दादा पवार, उनका निधन हो गया है। दैट्स अ वेरी सैड न्यूज। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो ये हॉट टॉपिक है चर्चा का। तो काफी सारे लोग चर्चा करेंगे, बोलेंगे कि उन्होंने काफी काम किया था हमारे पीसीएमसी के लिए, या पूरे बारामती के लिए। इवन पीसीएमसी के लिए काफी काम किया है उन्होंने। यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock एंड यूज्ड टू by 6 used to start working because he was a very workaholic. तो बहुत सारे लोग इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जाम्पल, ये टॉपिक ग्रुप डिस्कशन जो है, ये एक टॉपिक पे चर्चा होती है। या आपको एआई पे भी कुछ लोग, आप चाय के टपरी पे जाओ या कॉलेज में बैठे हो, रिसेस होता है और सब लोग बोलते हैं अरे एआई आ गया, एआई आ गया, मेरा जॉब लेने वाला है एआई। तो उसपे 3-4 लोग मिलके, आपके फ्रेंड्स लोग चर्चा करते हैं। तो जब ये लोग बोलते हैं तो कौन से वे में बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। तो आपको डायलॉग फॉर्म में लिखो। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट टाइम कैसे लिखना। क्लियर? एनी डाउट्स टिल नाउ? यू डोंट हैव डाउट्स, गिव मी अ थम्स अप। नो डाउट्स? वर्चुअल मैसेज सबको आएगा लिखना? You want to take a photograph, you can take a photograph. You want to take a photograph, I don't think so you need to take a photograph of this, but if you want you can, I don't mind. बट मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है कौन से टॉपिक्स पे आएगा। ठीक है, फॉर्मल लेटर कौन से टॉपिक्स पे आ सकता है? फॉर्मल लेटर ये टॉपिक पे आ सकता है। एनवायरमेंट डे, कीप योर एनवायरमेंट क्लीन। सेक्रेटरी, आप ये क्या बोलते हैं, ये कोई ये होंगे, क्या बोलते हैं, अथॉरिटीज हैं। तो उनको आप बोलिए कि बहुत गंदगी फैली हुई है आसपास, तो उसे क्लीन करने के लिए पहले तो कचरे की गाड़ी नहीं हेलो आती मैम। आपकी तरफ से, उसको भेजिए। फिर सोल्यूशन दीजिए कैसे आप एनवायरमेंट को क्लीन रख सकते। और एक एक्सक्यूज मी फॉर्मल मैम। लेटर आ सकता है कि ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है। ओके, तो उसके ऊपर आ सकता है ब्लड डोनेशन एक्सक्यूज मी कैंप। मैम। ये नोटिस राइटिंग में भी आएगा टॉपिक। गिव अ नोटिस, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और हमारे सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, तो नोटिस भेजो। नोटिस में ये भी आएगा कि भैया अभी वाटर का शॉर्टेज होने वाला है कल सैटरडे के दिन,
कितने से कितने बजे तक, क्योंकि टैंक क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे आपको राइटिंग स्किल में, नोटिस राइटिंग में, फॉर्मल लेटर में। स्पीच किस पे आएगा? स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन है तो स्पीच लिखो। ओके। कोई एक इवेंट आएगा उसके ऊपर आप स्पीच लिखो। ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ सकते। ये सारा जो पीडीएफ है, इसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है और मैंने भेज दिया है। ठीक है, आई सेंड यू ऑल द पीडीएफ्स। ओके। So should we go to another topic? Which topic should we take? I think we should take film review or book review. This is very important topic in writing skill. और ये बहुत जल्दी एंड फास्ट हो जाता है। बुक रिव्यू आता ही है या फिल्म रिव्यू आने ही वाला है आपको। दिस इज वेरी 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 इजी। ओके। दिस इज ब्लॉग राइटिंग। ओके। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप लोग फिल्म देखने बैठे हो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। तो कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं वो? आपके डैड पूछेंगे भाई किसने डायरेक्ट किया है फिल्म। आपके डैड ये भी पूछ सकते कि भाई बजट कितना है ये फिल्म का। आपकी मम्मी पूछेगी भाई ये डरावनी मूवी तो नहीं है ना, मैं नहीं देखूंगी। तो आपका भाई बोलेगा भाई अगर एक्शन हो तो मैं देखूंगा। बहन बोलेगी भाई एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है। दादी बोलेगी भाई कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोरियन में है तो मैं नहीं देखूंगी फिल्म। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन। और आपके फ्रेंड्स बोलेंगे भाई इसका बॉक्स ऑफिस में रेटिंग क्या है यार, तो हम देखते हैं फिल्म, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो तुम लोग बोलोगे अरे 4.5 है चलो देख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो सारा आपको फिल्म रिव्यू में पॉइंट वाइज में डाल देना है। सिंपल एज दैट। या तो पहले लोग क्या पूछते हैं आपको, ये मूवी का नाम क्या है? मम्मी बोलती है मूवी का नाम है क्या भाई जो देख रहे हैं? तो यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द फिल्म। ओके। सो कौन सी मूवी का? भी धुरंधर मूवी पे आ सकता है बिकॉज इज द लेटेस्ट मूवी। ओके। धुरंधर। धुरंधर पे आ सकता है फिल्म रिव्यू। या ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि राइट अ फिल्म रिव्यू ऑन योर फेवरेट मूवी। ओके। दिस वे ऑल्सो यू कैन। ऐसे भी आपको आएगा तो लिखेंगे कि धुरंधर पे आप फिल्म रिव्यू कर दो। आ सकता है। दैट्स अ वेरी अपकमिंग एंड बिकमिंग वायरल फिल्म। ओके। राइट। लेट अस सी। तो फिल्म का टाइटल क्या है? नेम ऑफ द फिल्म इज धुरंधर, फिल्म का टाइटल भी धुरंधर है। व्हाट इज द डायरेक्टर्स नेम? यस। हो। हाँ। ओके। Just pause for a minute. You're just adjusting some volume or something. Okay. Just a minute. Yeah. But don't go away, guys. I have to give you some very important things, questions on this. कौन से topics आएंगे? Okay. Okay. गरवारे कॉलेजला ते चेक करे 12. श्रीलंका को वगैरह ब्रेथलेस हम लोग से आप अपनी
So much. Okay, so where were we were on the film review questions. So these are the questions your family members and friends are going to ask you. Are you able to see the screen? Yeah, are you able to see the screen? Guys, are you able to see the screen? Niyanta, Avni, are you able to see the screen? Ankur, yeah? Okay, right. Should we proceed further? Okay. I think this is going to be your last session. I don't want to tax you now. जो पेपर आने वाला था, जो टॉपिक्स आएगा हर एक इस पे उसके 5 बार 8 बार जो रिपीट हुए क्वेश्चन, वो मैंने उसका पीडीएफ बना के दे दिया है आपको, आप ले लीजिएगा. ओके, यू कैन टेक इट. राइट नाउ लेट्स सी. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. कि कोई पूछेगा डायरेक्टर क्या है फिल्म का, कोई बोलेगा प्रोड्यूसर क्या है फिल्म का, फिर कोई बोलेगा कास्ट मतलब, आपकी बहन ने पूछा था एक्टर एक्ट्रेसेस कौन है, कास्ट मतलब एक्टर एंड एक्ट्रेसेस कौन है, कास्ट मतलब एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. अभी धुरंधर पे आएगा आपको जरूर, बट मैंने आपको धुरंधर का दिया है पीडीएफ में. बट हमें जस्ट टू गेट ए नॉलेज अबाउट कैसा लिखते हैं, विल टेक थ्री इडियट्स का फिल्म रिव्यू. सो आई एम नॉट पुटिंग धुरंधर, दिस विल कम इन योर एग्जाम. आई एम पुटिंग थ्री इडियट्स. सबने देखा है फिल्म थ्री इडियट्स? ओके, तो टाइटल ऑफ द फिल्म इज ऑल्सो थ्री इडियट्स. I don't know who's the director. Producer also I don't know because I don't watch more films, you know better. Cast in the film is कौन है actor actresses? Amir Khan, Mahadevan and Sharman Joshi. Okay. So you can put the actors like Amir Khan, P. Mahadevan and Sharman Joshi. Okay. Now, but इस साल तो धुरंधर का ही आने वाला है. हाँ, आपको फिल्म रिव्यू तो उसके ऊपर करके जाओ कि वो बहुत वायरल चल रही है, देख लो आप. मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको ये थ्री इडियट्स का. देन क्या आएगा, कोई बोलेगा भाई इसको बॉक्स ऑफिस में कास्ट कौन है, इसका सॉन्ग किसने लिखा है, सॉन्ग राइटर कौन है, एक्शन फाइट डायरेक्टर कौन है, फाइट डायरेक्टर कौन है भाई, जो भी होगा लिख दो. ये फाइट है क्या ये मूवी में, क्या ये मूवी में फाइट है? नहीं, देर इज नो फाइट. सो डोंट राइट फाइट डायरेक्टर, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, व्हाट जेनरे इज दिस मूवी. जेनरे मीन्स कौन से टाइप की मूवी है. मम्मी ने बोला था, पूछा था कौन से टाइप की मूवी है भाई, हॉरर होगा, मंजुलिका वंजुलिका की तो मैं नहीं देखने वाली हूँ भैया, मुझे डर लगता है. तो कौन से टाइप की मूवी है ये, कौन से टाइप की मूवी है, सस्पेंस है, हॉरर है? नहीं, थ्री इडियट्स कौन सी मूवी है, वी आर डूइंग फॉर थ्री इडियट्स. दिस विल कम फॉर एग्जाम, धुरंधर विल कम फॉर एग्जाम्स. अच्छा, विच टाइप ऑफ मूवी, इट इज लाइट कॉमेडी, सो यू हैव टू राइट लाइट कॉमेडी. देन बाबा इसका बॉक्स ऑफिस में ये कौन से लैंग्वेज में है, कौन से कंट्री में होता है ये, कौन से कंट्री में बनाई गई ये मूवी. तो आप लिख सकते हो इंडिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. व्हाट इज द लैंग्वेज, हिंदी में है, हिंदी, तेलुगु, मराठी. अभी ये फिल्म अगर फिल्म फेस्टिवल के लिए अगर ली गई हो तो वेरियस लैंग्वेज में होंगी, तो वेरियस लैंग्वेजेस लिख सकते हो. बट ये तो फिल्म बनाई गई थी हिंदी में, तो हिंदी लिखना. ठीक है, कौन से कंट्री से है ये, इंडिया. ओके. देन क्या क्वेश्चंस आ रहे थे, कोई पूछ रहा था बजट क्या है भाई फिल्म का, पापा पूछ रहे थे बजट क्या है, फ्रेंड पूछ रहा था रेटिंग क्या है, प्रॉफिट कितना है, बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट. बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट शायद से 400 करोड़ है, आई डोंट नो. बजट कितना है, 57 करोड़. कितने घंटे की मूवी है यार, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, कितने घंटे की मूवी है. यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो. ओके, एक पॉइंट डाल दो, हाउ मेनी आवर्स यहाँ पे डाल देती हूँ. हाउ मेनी आवर्स मूवी, सो टाइम आई थिंक इट इज 171 आवर्स.
ये ऊपर लिख देना, ओके, नीचे मत। अब इसका जो दूसरा पेज है वो मैं साइड में लिख दूं? साइड में आपको नहीं लिखना है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाके लिखना है, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ और मैं यहाँ पे 14th पॉइंट डाल रही हूँ फिल्म रिव्यू का। रेटिंग क्या है? रेटिंग मैंने लिखा था क्या? लेट मी सी। बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट रेटिंग क्या है? 5 स्टार है? नहीं, 4.5 स्टार है। ओके, ये सब तो मैंने लिख डाला है। अभी मैं दूसरे पेज पे जाऊंगी, क्योंकि ये साइड में नहीं लिखना है, दूसरे पेज पे जाके लिखना है, ठीक है? एम आई क्लियर? मैं इधर साइड में लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, सारे पॉइंट्स एक साथ आप पढ़ सको। लिखूं साइड में या दूसरे पेज पे लिखूं? आई थिंक आई शुड राइट इट ऑन अनदर पेज सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया, अदरवाइज यू विल ऑल्सो राइट इन। ठीक है, चलो भाई दूसरे पेज पे जाते हैं। यू गेट इट अनदर पेज, दैट इज 14th वाला। okay? और क्या क्या प्रश्न पूछे थे सबने? और किसी ने तो पूछा था भैया इसकी स्टोरी क्या है, व्हाट इज अबाउट द फिल्म, यू हैव टू पुट अबाउट द फिल्म। सो यू कैन से दिस फिल्म इज अ अबाउट द फिल्म, मतलब ये फिल्म क्या फैमिली के साथ बैठ के देखने जैसी है क्या, अबाउट द फिल्म। सो एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो 5 लाइन्स का कि दिस मूवी इज अ फैमिली लाइट कॉमेडी मूवी and Three Idiots. Huh? This movie is a light comedy movie, can be watched with family and friends. The themes which are emphasized or which are shown are friendship, working in team, and what? And focusing on excellence, so that success automatically follows you. Right? वो बोलता है ना आमिर खान, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप दुम भगा के आपके पीछे दौड़ेगी। तो द थीम्स आ, और आपने हमने देखा है कि ये मूवी फ्रेंड्स लोगों की है जो कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हाउ यू गोइंग टू पुट इट इन इंग्लिश? इन इंग्लिश, बिकॉज यू हैव टू राइट इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी। तो ये अबाउट द फिल्म हो गया। फिर 15th पॉइंट आएगा स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन मतलब इसका स्टोरी क्या है भाई? ये मूवी थी जहां पे 3 friends had gone for higher education so that they can give a good life to their parents. They are all from middle class families, and there they face a lot of pressure from the director, whose name is Professor Sahastra Buddhe. So what happens then? So in the pressure, a lot of students commit suicide. So there are 3 friends. They have shown how friends help each other during these times of difficulties, like attending the examination, making a project or whatever, right? Then how does the story takes a turn? ये 2-3 लाइन में आप लिखोगे, फिर लिखोगे the story takes turn when there is a very intelligent student by the name Funsuk Wangdu, and that student has not come here to just get a job or a certificate. He has come for the real knowledge, in search of the real knowledge. So he attends all the classes, different classes of different grades, so that he could extract or get maximum knowledge, because his attention is focused on gaining knowledge, right? So by gaining of such knowledge, at the end, at the middle of the picture, what happens? The director's daughter is pregnant and it's raining very heavily. So they couldn't get a mode of transport to reach the hospital. So, and the situation is very adverse. So what he does, uh, with his knowledge which he has gained, what he does, he makes a battery made up, makes a battery. Sorry, he makes up a charger, inverter with the help of the car battery, so that they can do the delivery well. And instructions are given by the daughter of the second daughter of the director, whom he loves a lot. But at the end, what is so they deliver the baby very normally, and the director comes to know that there's nothing hidden in the bookish knowledge, but you really have to be explorative, and you have to find other
means of searching knowledge instead of all those bookish ways which he was teaching. And he was putting so much of, he was wrong in putting pressure on students, because he saw that students who were really normal, they didn't attend the classes, but they had more knowledge than the regular students, because they used to explore different things when they were doing project, or they were going and attending others classes to get more knowledge. So that's how he realizes his mistake, and pen he gives a pen to Punsuk Wangru, who had saved a daughter's life and helped him to deliver the baby safely. So ये पूरा story में आपको लिखना है. You know the story, right? You write it in a very pressy writing. Okay. I'm not going to tell you the story of Three Idiots now. Okay. Now from English, I'll become a film director or a writer otherwise. So you know how to write the story. ये 10 लाइन में story लिख दो. और फिर 16th point क्या आएगा अभी? Conclusion या moral of the story या message या moral of the film. क्या मैसेज मिलता है? What message you get to know after you watch this? We have seen that we have got a message of how we should how friendship is important, because when the director is putting a lot of pressure, the students are committing suicide. So Funsuk Wangdu is the person who goes and helps the friends in such difficult situations, right? When his friends didn't had money to give it, to buy something, or to buy, or to make a project, they don't have time to make a project, or they don't have the knowledge, he makes and gives the project to the students just to help them out in their regular academic academic session. So I don't have to write all that. Okay, what am I going to write here? That the moral or the message which I'm getting from the story is about how precious is friendship, how we can help our friends in times of trouble, team building, team bonding. Third is focus on, if you focus on excellence, success will automatically follow you. So these are the three messages I've got it from the uh, movie. So here we end and my opinion, yes, 17th is my opinion about this is very important. If you miss this point, you won't get the marks. My opinion is very important. What do you feel about this movie? आपका ओपिनियन क्या है? आपके विचार क्या है ये मूवी के बारे में? So you can write it कि I gained lot of self confidence while watching this movie in my academic sessions, because I thought, वो बोलता है ना all is well, because I heard a dialogue in that, all is well. कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि अरे ऑल इज वेल, हमारा पेपर अच्छा जाएगा. सो यू गाइज ऑल्सो थिंक ऑल इज वेल. ओके, पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है. इंग्लिश में कुछ नहीं है ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत इजी है. मैंने सारे सेक्शंस आपको इजीली समझाए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं जो पूछ सकते हैं आपके फाइनल 12th बोर्ड एग्जाम्स में. दैट उस वो मैंने पीडीएफ दिया है थ्रू द स्टूडेंट्स ग्रुप. सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. ईच एंड एवरी सेक्शन मैंने जाके आपको समझाया है. पोएम अप्रिसिएशन कैसे करते हैं, क्या पॉइंट्स है, क्या फॉर्मेट है, राइटिंग स्किल का क्या फॉर्मेट है, ग्रामर कौन से टॉपिक्स पे आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, प्रीफिक्स सफिक्स, antonyms, synonyms, give a substitute word, one word. Okay, ये सब मैंने आपको समझाया है. एरर, सेंटेंस में जो एरर है वो रेक्टिफाई करो, पंक्चुएशन मार्क्स, आर्टिकल्स में पूछ सकते हैं, प्रपोजिशंस पूछ सकते हैं, कंजंक्शंस पूछ सकते हैं. मैंने सब आपको वन बाय वन स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने पूरा रिवीजन लिया, पूरा समझाया है खुद से बैठ के कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रपोजिशंस कहाँ पे लगाए जाते हैं. प्रपोजिशंस आपको पोजिशंस बताते हैं. आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ पे लगाया जाता है, द स्पेसिफिक चीजों को लगाया जाता है, और ए कंसोनेंट को लगाया जाता है, एंड वॉवल्स को लगाया जाता है. वॉवल्स क्या है, कंसोनेंट क्या है, ये भी मैंने समझाया था. पैसिव एक्टिव में, एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी मैंने समझाया था. आई थिंक वी आर डन विद द ग्रामर टॉपिक्स. प्रोज में कौन से आ सकते हैं, उसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं. आपके स्टूडेंट्स ग्रुप पे आज ही दिए हैं मैंने, कल और आज.
कल हमें छुट्टी थी तो आई थॉट लेट मी कॉन्सेंट्रेट एंड गिव यू दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज इधर करने वाले थे सॉल्व, पर हमने नहीं किए क्योंकि योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. आई डोंट वांट टू टैक्स यू on this online lecture. So today is the last lecture. You have any doubts, please be open and ask me. I think we finish our writing skills. या अपील रह गया है, अपील कैसे लिखते हैं वो एक टॉपिक रह गया है. डू यू वांट टू राइट एन अपील? अपील इज नथिंग बट इट्स अ फॉर्मल लेटर. आप सपोज अब्रॉड में जा रहे हो, सपोज ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टर को एक लेटर लिखोगे, बोलोगे कि मैं यहाँ पे मैंने ये डिग्री कर रखी है, मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स करने, सॉरी नासा में, सपोज आप नासा का इंस्टीट्यूट है और आप नासा में पढ़ने जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा हूँ, आई वॉज बीन अ टॉपर, आई हैड पार्टिसिपेटेड इन so many competitions, maybe Olympiad or whatever you can specify. You're a gold medalist. You can say I'm a gold medalist. And sir, please give me an opportunity to, or please consider my candidature as a student in your upcoming course in astrophysics. I want to pursue a master's program in astrophysics, as I think your university would give me valuable inputs. Thank you. So, and what do you say formal letter होने वाला है? And what do you say thanking you? फॉर्मल लेटर का मैंने फॉर्मेट दिया था, वैसे ही लिखना है. आप अपील कर रहे हो उसको कि भाई मुझे आप ले लो, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज अपील. ओके, am I clear what is appeal? It's a kind of formal letter. Suppose आप बाहर कोई इंस्टीट्यूट में, अब्रॉड में जा रहे हो, कोई आप रशिया जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, जर्मनी जा रहे हो, और वहां के लोग आपको नहीं जानते, वो डायरेक्टर, वो जो इंस्टीट्यूट है उसका आपको नहीं जानता है, तो आप उसको ये अपील कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे प्लीज, मैं इसमें इसमें अच्छा हूँ, राइट? मैं फर्स्ट तो इंट्रो में क्या आएगा, ओपनिंग पैराग्राफ में, मैं यहाँ यहाँ से हूँ, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ इंडिया से, ये यूनिवर्सिटी से, मुझे इतने इतने परसेंटेज है मैथ्स और फिजिक्स में. आई एम अ वेरी project oriented person. I've done so and so projects with so and so companies. If you've done, or if you've participated in any, if you've got any awards, you've participated in any competitions related to astrophysics or mathematics and physics, you can say, I'm a gold medalist in maths, Olympiad, whatever competitions. And my interest lies in maths and physics. And so I want to do a degree, postgraduate degree from your esteemed university. सर लास्ट में आएगा, ये मेन पैराग्राफ में आएगा, ठीक है? ओपनिंग में तो आप इंट्रोडक्शन करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो इंडिया में. मेन में आएगा आप क्यों कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आप में क्वालिटीज है, आपने ये प्राप्ति की है, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू राइट. क्लोजिंग में क्या आएगा? क्लोजिंग में यू विल राइट की हाउ यू आर, I'll be really grateful to you if you be thankful, be grateful to him and ask him कि मेरा कंसिडर करो भाई, मेरा कैंडिडेचर, क्योंकि आई थिंक आपके आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन होने के बाद मैं बहुत कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और आपका इंस्टीट्यूट मुझे बहुत कुछ वैल्यू एडिशन देगा मेरे फील्ड ऑफ नॉलेज में, दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स. तो दैट इज नथिंग बट अ फॉर्मल लेटर, दैट इज एन अपील. But no need of writing an appeal and all that stuff. We have all these done. इसमें से आपको आ जाएगा, आप नोटिस आएगा, ईमेल आएगा, फॉर्मल लेटर आएगा, नोटिस आएगा. नोटिस इज वेरी सिंपल, वी हैव डन नोटिस, राइट? तो ब्लॉग राइटिंग है, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया है, ईमेल है, ईमेल मैंने बताया था आपको जॉब एप्लीकेशन पे आता है, फॉर्मल लेटर आपको आएगा, वैसे आपको लीव चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल को फॉर्मल लेटर लिखो, या आपकी यहाँ एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो अथॉरिटीज को आप फॉर्मल लेटर लिखो कि यहाँ पे कैसे आप एनवायरनमेंट क्लीन कर सकते हो और कैसे क्लीन रख सकते हो सोसाइटीज में या आजू सराउंडिंग्स में. थर्ड है, और काफी सारे ऐसे फॉर्मल लेटर तो आपको आता है लिखने के लिए. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज फॉर्मल लेटर. ईमेल एंड फॉर्मल लेटर इज द सेम, but email is very short like a notice, but with a requesting tone, whereas notice is little stern, right? I think we have done with all the writing skills. Now, do you have any questions? I've kept this session for your question answer session. Yes, do you have any question?
Here we end today's online lecture. Do you have any questions, please? Can you ask me? Yes. Avni, do you have any question? I think you'll be able to write all the writing skills. Do you have any questions? Yes, Niyanta, tell me. You had many Ma'am, questions since the beginning. Can I know which questions you were facing? Yes, Niyanta, tell me. Please unmute ma'am, it. you keep saying that you have shared the PDFs, but I've never received it. Can you Yeah? tell me on which group you have given? Sorry? Sorry? Hello, ma'am. Yes? Ma'am, in the class, you keep saying that you have given the PDFs. Can you please just tell me on which group you have given? I've given on the students group. I am not there actually, so I've not received any PDF. You're not there on the students group? Which academy you are associated with? Acharya, na? Yes, ma'am. So you might be having some number na, at Acharya. Yeah, I've given it to Nilesh sir. I am Nilesh in Bankar sir. the, yeah, I am in the Acharya's group. I have my own number, but in Acharya group, we haven't got any PDF yet. No, you will get it because I think the today he is busy with the chief executive, the founder and chairman has come today. So I think he's No, I busy get with it, him but right in the now in previous to some previous meetings. class, you also have said you have shared some PDFs, and also like 1 month ago. So I had no idea when did this happen because I've never Sorry? received any PDFs from their side. Sorry? No, I am saying that in the Uh, previous classes, you have said that you have given the PDFs already. So the PDFs that you have given like in past month, uh, we have never received it. Acha, you can join. I will ask them to send you the PDF. Okay. You Ma'am, want my please number? You do can because take my it's number for any ex question answer session. I'll give you my number. You can take my yes, number ma'am. for any question answer. Okay. You can take my number 84. Just give me a second. Just give me a Yeah. second. You have any question? Call me up and ask me. Yes, ma'am. 8485 8485 097 097 595. 595. Yeah. But not during the session. Okay. 8485 Yeah. 097 Yeah. 595. Right. You can, any question you have related to any academics, you can ask me. Yeah. Ma'am, your name? My name is Jyoti Dawlani. Jyoti Dawlani. You can just say Jyoti D. Yeah. Yes, thank you so much, ma'am. अच्छा अभी कुछ I'll क्वेश्चंस हैं राइटिंग स्किल्स के ऊपर ग्रामर रिलेटेड No, ma'am. I just wanted that for my अच्छा novel practice. चलेगा You said you have given some videos that we can watch. It would be हाँ आई really helpful अंडरस्टैंड for me. इट्स ओके आई विल सेंड see I can't say I'll send it to you but I will surely send it to you. I'm not supposed to but it's okay just to help my students I would do that job. Yeah. But I'm not authorized to. That's why. Yeah. But you No will get worries, it on the ma'am. students group भेजा है मैंने but I think chairman founder has come so he's busy with that. He's a Yeah, head I'll now. contact Nilesh sir also once about that you have Yeah, shared. yeah. You can contact If him. He not, will I'll give you definitely. He's contact a you very for good that. person. He will Yeah, definitely yeah, help you sure. out. Yeah, Yes, I know that. yeah. Thank you so much. पोस्ट लंच उनको थोड़ा 4 बजे फोन कीजिए थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो Yeah, I'll do तभी it वो in दे the देंगे है ना evening. I राइट myself विल have इशू ऑल हिज another डिटेल्स class. अच्छा एनीथिंग एल्स गाइस No, ma'am. अवनी नियंता No, वो चला ma'am. गया क्या कौन था वो जिसके घर में भजी खाने के लिए जाने वाली थी व्हाट्स हिज नेम ही इज Prithvi. गॉन he thought I will roast him today. I didn't want to roast him. I just wanted to know whether you all are attentive. You are very attentive, Niyanta. Even Avni is very attentive. Avni, you have any questions? Avni, No, any ma'am. questions? No, ma'am. Anything? Format, कुछ No, grammar? ma'am. सब हो गया अपना प्रोज हो Yes, गया ma'am. 4 सेक्शंस हैं प्रोज में 26 मार्क्स सॉरी 34 मार्क्स का आएगा प्रोज उस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने पूरा जो जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो मैंने दे दिया है पीडीएफ में ठीक है ग्रामर क्या क्या आने वाला है वो सिखाया है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी दे दिया है पीडीएफ में राइटिंग स्किल्स के ऊपर दिया है कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं फिर मैंने इसके भी ऊपर क्वेश्चंस दिए आपको राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स के आएंगे 4 मार्क्स ईच प्लीज अच्छे से कीजिए राइटिंग स्किल्स वेरी बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो पेपर कैसे लिखना है पता है ना सीक्वेंस वाइज लिखना है मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पेज पे जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पेज पे जा रहा है
अरे वहां पे तुम कैसे, और हर एक आंसर के बाद आप लाइन मारना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, बुक रिव्यू भी फिल्म रिव्यू के जैसा ही करना है, ठीक है। सिर्फ उसमें बुक, फिल्म के बदले बुक आएगा, टाइटल ऑफ द बुक आएगा, ठीक है। आई थिंक यू विल स्कोर वेरी वेल इन इंग्लिश। आई थिंक यू विल स्कोर अबाउ 75, या। सारे टॉपिक्स क्लियर है। प्रोज आएगा 34 मार्क्स का, राइटिंग स्किल 16 मार्क्स का, पोइट्री 14 मार्क्स का, और 16 मार्क्स का आता है आपके नॉवेल्स। नॉवेल्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने पीडीएफ दे दिया है। उतना ही किया तो भी चलेगा, बट नॉवेल्स पढ़िए प्लीज, स्टोरी जानिए। और फर्स्ट लेसन तो पढ़िए ही पढ़िए। इंडियन कौन से नॉवेल्स है, 18th सेंचुरी के कौन से नॉवेलिस्ट हैं, उनके नाम क्या है, उन्होंने कौन सा नॉवेल निकाला है। सेकेंड एंड 6th सेंचुरी वाले कौन से नॉवेलिस्ट हैं, फॉरेनर कौन से फॉरेन के कौन से नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने कौन से नॉवेल्स निकाले, वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। इसलिए फर्स्ट लेसन तो है नॉवेल्स, वो पढ़िए। कौन से टाइप्स के नॉवेल्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। लाइक सो एंड सो इज गॉथिक, सो एंड सो इज व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल, यूटोपियन। ये जो मैंने हमने करवाया था डे बिफोर यस्टरडे, ओके। ये नॉवेल्स में से आएगा। कैरेक्टर स्केच आएगा, मैंने सब समझाया था आपको। कैरेक्टर स्केच आएगा, ठीक है। और आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, लॉन्ग आंसर्स 50 वर्ड्स में लिखो, 120 वर्ड्स में लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 A B C D पूरा नॉवेल्स पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 A B C D विल बी ऑन राइटिंग स्किल्स। तीन तीन ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक ही करना है, मगर अच्छे से पढ़िए, कभी कभी दो भी बोलते हैं आपको, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी पोएट्री का मैंने आपको बोला बोला था कि पोएट्री में आपको पोएम अप्रिसिएशन आएगा, या पोएट्री में है टोली, पोएट्री में आपको पोएम अप्रिसिएशन आएगा, ओके। पोएट्री में पोएम अप्रिसिएशन आएगा, हमने देखा था। पोएट्री में क्या आएगा, हमें पोएम अप्रिसिएशन आएगा, अप्रिशिएट अ पोएम। फिर आपको बोला जाएगा माइंड मैप करो उसी पोएम का। फिर माइंड मैप करने के बाद आपको बोलेंगे पोएट्री लिखो। सपोज ब्यूटी पे है, ब्यूटी आ सकता है, ठीक है। ब्यूटी पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और पोएम अप्रिसिएशन के लिए क्या है, पहले तो बोलेंगे पोएम दिया जाएगा, उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 A B C D, या 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यस, ऐसे आएगा। पोएम में क्या क्या आएगा, पोएट्री सेक्शन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले तो पोएम दिया जाएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम। माइंड मैप बोलेंगे फिर आपको, उसी इसका आपको बोलेंगे भाई माइंड मैप निकालो। फिर बोलेंगे आपको अप्रिसिएशन करो, पोयम अप्रिशिएट करो। पोयम अप्रिशिएट, पोयम अप्रिसिएशन। उसमें राइम स्कीम मालूम है ना, राइम स्कीम आने ही वाला है, हाँ। फाइंड द राइम स्कीम, राइम स्कीम के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोयम, इसमें कौन सा राइम स्कीम है, को मालूम है ना। राइम स्कीम मतलब राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। अभी सपोज ये पोयम है 1 2 3 4, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ राइम स्कीम क्या है, उसके बारे में मैंने पीडीएफ भेज दिया है। ए ए A A B B, या A B क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है राइम स्कीम। मैंने 4 राइम स्कीम से उसके ऊपर मैंने एक पीडीएफ दिया है। पीडीएफ ने ऐसे शॉर्ट नोट दिया है, उतना पढ़ लिया तो आ जाए, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स, कौन से पैराग्राफ में राइमिंग वर्ड्स मैच होते। सपोज ये पैराग्राफ है ए, सपोज मैं एक पैराग्राफ देती हूँ, ओके। एक पैराग्राफ में लाइट, तीसरे पैराग्राफ में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यहाँ पे साइट, यहाँ पे है लिव, यहाँ पे गिव। तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये सी डी है। मगर राइमिंग होने के कारण वो सिमिलर राइमिंग वर्ड्स किस में है। सपोज देखो लाइट और लाइव राइमिंग है क्या, नहीं, लाइट और साइट राइमिंग है। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, सॉरी A A B B। ए से ए मिल रहा है, राइट, ए से ए मिल रहा है तो आई राइट ए ए, एंड देन लिव गिव, बी से बी मिल रहा है तो बी बी, ठीक है। ऐसे A B A C भी हो सकता है। सपोज ये वर्ड लाइट, अभी साइट वर्ड यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, ए बी, ए बी, क्योंकि
लाइट और साइट मिल रहे तो ए भी आएगा, इधर ए भी आएगा, और बी यहाँ पे आएगा ए बी बी सी, या सॉरी सॉरी, लेट अस टेक अनदर, लेट अस टेक लाइट, साइट, यहाँ पे लिव आ रहा है, यहाँ पे गिव आ रहा है, लिखते हैं हम लोग। ये ए से ए मिल रहा है, बट ये बी ए बी ए बराबर, यहाँ मैंने ए बी डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या, लिव गिव, बी ए, और ये बी से मैच है, बी बी। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है इधर? हाँ, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर? ये ए बी सी डी, मगर ये ए से ए मिल रहा है, बी से बी मिल रहा है, इसलिए ए बी भी लिखा है। यहाँ से ए और बी मिल रहा है एक साथ, तो मैंने ए बी भी लिखा है, और यहाँ बी भी मिल रहा है तो बी भी लिखा है। ऐसे अलग अलग 4 टाइप ऑफ राइमिंग स्कीम है, मैंने वो आपको उसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया, वो आ जाएगा। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम, माइंड मैप बोलेंगे पोएम पे करने के लिए, पोएम अप्रिसिएशन बोलेंगे, उसमें सारे पॉइंट्स लिखने हैं, और उसमें पॉइंट में लिखा तो भी चलेगा, मगर ऐसा मत करो 3 ही पॉइंट लिखो और भर भर के लिख दिया, आपको नहीं मिलेंगे मार्क्स। 9 पॉइंट का अपना पोएम अप्रिसिएशन, एक्चुअली 6 पॉइंट का है, बट मैंने 9 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, एक आधा पॉइंट नहीं आया तो आप लिख दो, ठीक है। अच्छा, जॉनरे जो है, जॉनरे जनरे कौन से टाइप का पोएम है, या कौन से टाइप का फिल्म है, या कौन से टाइप का की बुक है, वो जेनरे मतलब कौन से टाइप का है, कॉमेडी है, सस्पेंस है, एक्शन है, थ्रिलर है, साइंस फिक्शन है, आप पता लगाओ, हॉरर है, वो सब मिस्ट्री है, क्रिमिनल मत है, मतलब गॉथिक, कौन से टाइप का नॉवेल है वो आप नॉवेल में लिख दो, ठीक है। पोयम में कौन सा जेनरे है वो लिख दो, इमेजिनरी इमेजरी है, पिक्चरिस्क है, वो भी इमेजरी है शायद से पोयम में। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, इमेजरी है शायद से इसमें। एंड एंड इसमें क्या आता है, और नॉवेल में क्या आता है, पिक्चरिस्ट, गॉथिक, कौन से टाइप का नॉवेल है, मूवी में क्या आता है, हॉरर, लाइट कॉमेडी, सस्पेंस, साइंस फिक्शन, ऐसा आप लिख सकते। जेनरे मीन्स विच टाइप ऑफ पोएम या मूवी और फिल्म इट इज, ठीक है। पोएम अप्रिसिएशन आएगा, उसके बाद आएगा राइट अ पोएम इन योर ओन वर्ड्स, राइट अ पोएम इन 4 लाइन्स। इस पे भी जो क्वेश्चन है मैंने पीडीएफ में दिया है, ठीक है। नियंता, contact me, I'll give you the number of the head, and you can take all the PDFs from the group, students group. अच्छा, ये हुआ, इस पे पोएम में ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। राइटिंग स्किल्स पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, नॉवल पे भी मैंने डिस्कस कर दिया है कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते। नॉवेल्स में थीम इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, और स्टोरी लाइन समरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो तो समरी पढ़ो और एक्सट्रैक्ट पढ़ो और थीम पढ़ो, इतना ही पढ़ो। अगर आप स्टोरी समझ के लो भाई, कैरेक्टर किसका कैसा है, कैरेक्टर स्केच लिखने को बोला तो 8-10 लाइन में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 लाइन में लिख दिया खत्म हो गया अपना। अरे 8-10 लाइन में लिखो भाई, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो देख के लिखो, ठीक है। फाइनली आई वॉन्ट टू शेयर पेपर कैसे लिखना है, बोर्ड का, बोर्ड का पेपर ऐसे आता है, ठीक है। यू हैव टू राइट इट दिस वे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन इज शेयरिंग दिस कि पेपर कैसे लिखना है। 10th में लिखा था ना आप लोगों ने पेपर, वैसे ही लिखना है। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 ए, सेक्शन 1, ए का है आंसर 1, आंसर 2, ये आंसर लिखने के बाद एक पेंसिल से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर ये आंसर लिखने के बाद आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे आपने बराबर से लिखा। ये लिखना भूलो मत कि बाबा कौन से सेक्शन का कौन सा आंसर है, क्वेश्चन 1 ए का आंसर 1 है, क्वेश्चन 1 ए का आंसर 2 है, क्लियरली पता चल रहा है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसको मालूम पड़ेगा अरे क्वेश्चन 1 का ये। अरे मैंने जब व्हेन आई वाज चेकिंग द प्रीलिम्स पेपर आई सॉ दैट students were not writing the question number,
How will I come to know किसका आंसर है वो? सेक्शन ए का है, बी का है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, 5 का है. I myself got very irritated on them. But then I realized no one has told them how to write the paper. बेचारे बच्चों का क्या fault है? But you all have appeared for your 10th, right? So remember that 10th में कैसा लिखा है paper, right? Please write paper in this fashion. दोनों तरफ से pencil से margin निकालो, answer लिखने के बाद underline करो. And I think here we finish our today's session. Thank you so much for your patience and for your time. Do you have any questions or queries? Please let me know. I want to end the session early because I want you guys to give some space because you have just attended a session, right? Which was very hectic. You have attended your practical. I want you guys to rest and relax. Free up your minds. Kuch questions hai? Jaldi jaldi pucho. I want to leave you early today. And all the best for your exams, guys. Any questions? Niyanta? You had a lot of questions, Niyanta. You can ask me or you want to ask me later. No issues. Avni, you want to ask me some questions. Please share all the PDFs Question. which you get it from the group to all your friends. Okay. Chalo, bye guys. No question. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, how did you find the session? Give me a feedback. It's okay. Do that later. Okay. But have you all understood everything? It's good. Thank you so much. Have a nice day, guys. All the best for your exams. I'll Thank you, pray for you. ma'am. Yeah, I'll pray for you. I would want to meet you after your exams. कभी तो भी किधर तो भी ठीक है चलो bye guys. Have a nice day. Yeah. Thank you for your time. I'm ending this session.